Hi guys, this is Rabia Tahir and you're listening to the Brown Girl Rants. I hope you all are doing well. I'm completely fine. I am doing very well and I hope you all are doing well too. I hope you all are having an amazing Ramadan. I won't lie when I say that I have completely lost count of what rosa we are on. I know we are in second Ashra, obviously. I know we are in the first half of the second Ashra. Matlab, it's not the it's the early it's the early days of the first Ashra. I think it's 14th Rosa or it's 15th. I don't know. I have lost count, which is not a good thing. Lekin we are almost halfway done through Ramadan and I don't know where the time went. I literally don't know. Now the thing is that the routine is not that great. It's very exhausting and I don't know. I am trying to make the best out of this Ramadan. Lekin I'm just not happy with my schedule of sleeping and waking up. It's so hard for me to stay awake till Sehri, but I have to do it because I can't sleep for an hour or two. I think 2 hours are matlab kya 2 hours are fine, but for an hour I can't sleep for an hour. And the thing is that के मैं जितना भी सो लूँ मैं obviously if I am able to sleep 5 hours before सहरी तो फिर सही है लेकिन मैं अगर 3 घंटे सो रही हूँ 2 घंटे सो रही हूँ तो I want be that um active for the sehri मतलब कि it would take me a lot of time to get into my senses and do something for sehri हाँ अगर मुझे उठ के बस सहरी करनी है तो फिर तो मुझे बेशक 5 मिनट पहले उठा लो but that's not the case तो इस वजह से I am just not happy with my time schedule. I wish I could have slept बिफोर सहरी के बस तरावी पढ़ के सो जाओ और फिर आराम से मतलब कि फिर सहरी के टाइम उठ जाओ और फिर ना सो बेशक और the thing is that के even if I sleep before सहरी even if I'm sleeping for 2 hours before सहरी even if I'm sleeping an hour before सहरी सुबह मैं उसी टाइम उठती हूँ तो it does nothing but adds extra sleep which I don't need right now because I'm already oversleeping अगर मैं सहरी ना करके अगर मैं सहरी से पहले नहीं सो रही तो आई स्लीप एट लाइक 5:36 इश और फिर मैं उठती हूँ 12-1 बजे और अगर मैं सहरी से पहले सो भी जाऊँ तो भी मैंने उतने बजे ही उठना है तो इट्स डूइंग नथिंग बट एडिंग एक्स्ट्रा स्लीप इन माई लाइफ विच आई डोंट रियली वांट और मैंने सुना था कि लोगों के जो हैं वो आंखें मतलब कि दे गेट स्लीपिंग what are they called think they you get under your eye due to lack of sleep. People get that. I think I'm getting that due to excessive sleep. So, so I don't think dark circles. So I don't think I need more sleep in my life. I'm just not happy with waking till Sehri, but it's okay. It's fine. Other than that, I'm doing really, really, really well. It's an struggle daily. It's a daily struggle to come up. It's a daily struggle to come up with something different for Sehri, for Aftari, sorry, not Sehri. It's a struggle to come up with something different every day for Aftari, and I don't know. I think I have, मतलब कि I genuinely need recommendation from you guys, और I need easy things. मुझे ऐसी कोई चीज़ नहीं चाहिए जिसकी मुझे प्रिपरेशन 10 घंटे के पहले करनी पड़े. तो it's very मतलब कि that's the मुझे अफ्तारी बनाने में इतना नहीं अफ्तारी बनाना इज नॉट ड्रेनिंग लेकिन अफ्तारी के बारे में सोचना इज सो मेंटली ड्रेनिंग मुझे कुछ समझ नहीं आती तो इफ़ यू गाइस हैव एनी रेसिपी तो प्लीज सेंड मी ऑन इंस्टाग्राम और ऑन ट्विटर आई जेन्युइनली नीड मैं हर बार हर किसी से कुछ ना कुछ पूछती हूँ और फिर भी आई एम आउट ऑफ रेसिपीज और या फिर मतलब कि कोई ऐसी रेसिपी होती है जिसका मेरे पास कोई इंग्रेडिएंट नहीं है लेकिन खैर आई एक्चुअली डिसाइडेड कि वील जंप राइट इनटू द टॉपिक दिस टाइम और मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी मैंने ऑलरेडी हालांकि बात कर ली इतनी ज़्यादा लेकिन वील जंप राइट इनटू इन द टॉपिक व्हिच इज़ अबाउट spiritual awakening which is about discovering Islam and having मतलब के being certain about your religion and how
we could discover that or find that and educate ourselves and how it happens, क्या होता है वो सब कुछ. तो I'll get into it obviously. लेकिन we're jumping right into that topic. So yeah, so we are born in a Muslim family. We are raised in a Muslim community. Almost all of us are born in a Muslim family, and majority of us are raised in a Muslim community or a Muslim family at least. तो आई थिंक दैट फॉर अस इट वाज वेरी इजी ऑब्वियसली. और कभी कभी मुझे समझ नहीं आती, या कभी कभी आई थिंक मतलब कि आई एम श्योर ऑल ऑफ अस वुड थिंक दैट हाउ आई डिड गॉट सो लकी दैट आई गॉट born into a Muslim family. और मैं क्रिश्चियन फैमिली में पैदा हो सकती थी, मैं हिंदू फैमिली में पैदा हो सकती थी, मैं किसी और रिलीजन की फैमिली में पैदा हो सकती थी, लेकिन आई गॉट चूजन टू बी born into a मुस्लिम फैमिली. तो हमारे लिए बड़ा इजी था कि इस्लाम के बारे में जानना या फिर मुसलमान बनना, क्योंकि हम उस फैमिली में पैदा हुए हैं जिसमें हमें सिखा रहे हैं बचपन से. और हम हमारे कान में अजान दी गई है, हमें पहला कलमा सिखाया है, हमने कारी साहब लगवा के दिए, हमने कुरान सीखा है, हमने इस्लामियात पढ़ी है, हमने अरबिक पढ़ी है, हमने कुरान की ट्रांसलेशन पढ़ी है. हमारे पास टीचर्स थे जिन्होंने हमें इस्लाम की नॉलेज दी, हमारे पेरेंट्स ने हमें दी. और तो हमारे लिए बड़ा इजी था, मुझे लगता है कि हाँ हम मुसलमान हैं, या टू बिलीव इन इस्लाम वाज वेरी इजी फॉर अस, क्योंकि वी आर born in the family that are practicing Muslim. Especially I think कि अगर कोई यहाँ पे पाकिस्तान से, मतलब कि ऑब्वियसली मेजोरिटी लोग पाकिस्तान से हैं, या जो भी, अगर आप किसी ऐसे कंट्री से हैं जो कि जहाँ पे मुस्लिम मेजोरिटी है, तो यू आर इन अ कम्युनिटी जहाँ पे मेजोरिटी मुस्लिम है. तो और आपका मेरे कभी कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनका कभी शायद इंटरेक्शन ही ना हुआ हो किसी दूसरे रिलीजन के इंसान से, लेकिन आई एम श्योर कि हुआ होगा. जैसे मेरा बहुत कम लोगों से हुआ, मतलब क्या, आई कैन काउंट पीपल बचपन से लेकर अब तक जो मुझे किसी और रिलीजन से जिनका मेरा मेरे जिनसे मेरा इंटरेक्शन हुआ हो. तो आई थिंक कि हम उस कम्युनिटी में थे जहाँ पे हमें अजान सुनने को मिल रही है, जहाँ पे मस्जिद है, जहाँ पे ईद की छुट्टियां मिल रही हैं, जहाँ पे अम, रमज़ान हर तरीके से जो है वो मनाया जा रहा है और प्रैक्टिस किया जा रहा है. और जहाँ पे वो सारे जो भी हमें इंडिपेंडेंस थी कि हमें जो भी करना है हम वो करें. और कुछ लोगों के लिए ऐसा नहीं है, अब आके ऑब्वियसली अब मतलब कि एवरीवन हैव द राइट टू प्रैक्टिस देयर रिलीजन फ्रीली इन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज. कुछ मतलब कि कुछ ऑब्वियसली कंट्री हैं जिनमें हिजाब पहनने पे रिस्ट्रिक्शन है, जिन पे अभी भी मुस्लिम्स को बुली किया जाता है. लेकिन वी हैव द प्रिविलेज टू बी born इनटू अ कंट्री जहाँ पे हम मुस्लिम कम्युनिटी के साथ हैं और हमें कभी ऐसा कुछ फील ही नहीं हुआ. तो इट वाज वेरी इजी फॉर अस टू बी इन दैट पाथ एंड प्रैक्टिस दैट रिलीजन, क्योंकि हमें कोई कहने वाला नहीं था, कोई हमें हमारे रिलीजन पे हमें बुली करने वाला नहीं था, हमें कभी अपना रिलीजन डिफेंड नहीं करना पड़ा. हमारे लिए बड़ा इजी था वो चीज़ फॉलो करना और उसको प्रैक्टिस करना, क्योंकि हमारा कभी किसी से इंटरेक्शन हुआ ही नहीं जो दूसरे रिलीजन से हैं. लेकिन आई एम श्योर सम पीपल हियर आर लिसनिंग जो कि इमिग्रेंट्स हैं, किसी और कंट्री में चले गए और दे ग्रू अप इन अ प्लेस जहाँ पे बहुत से और रिलीजन के लोग होंगे और उनके साथ होगा. और लेकिन मतलब क्या, ऑब्वियसली आपकी फैमिली मुस्लिम थी, तो आई थिंक दैट स्टिल समहाउ वी we cannot we did not have that difficulty that a convert would have, जो कि इस्लाम में कन्वर्ट करते हैं, हमें उस तरह की डिफिकल्टी नहीं करनी पड़ी. मतलब कि वी वर सर्टेन, हमें पता था कि हमने ये चलना है, ये सीखना है. नाउ एज अ मुस्लिम ऑब्वियसली, जैसे कि मैंने कहा, हमें इस्लामियात पढ़ाई, हमने कारी साहब से पढ़ा, हमने कुरान पढ़ा, लेकिन दैट वाज समथिंग दैट वी हैड टू डू, या that wasn't the choice we had to make, or which I think we should be lucky for that कि हमारे पेरेंट्स में इतनी अवेयरनेस थी, हम ऐसे स्कूल में गए हैं जिन्होंने हमें वो नॉलेज दी है, लेकिन हमने खुद से अपने लिए चॉइस नहीं की. और वहाँ से हमने नॉलेज ली, सीखा, और विच वॉज कंपल्सरी, जहाँ से हमने नमाज सीखी, नमाज पढ़ना सीखी. उसके बाद जब हमें बोला गया कि नमाज फ़र्ज़ इबादत है, आपको नमाज पढ़नी चाहिए, तो हमने नमाज भी पढ़ी. जब हम बीच में थोड़े से अपने डिसीजंस खुद लेना शुरू हो गए, तो हमने नमाज पढ़ना छोड़ भी दी कभी. और
कुछ लोग मतलब कि मैं खुद हूँ, मैंने खुद मतलब कि बहुत अपनी जिंदगी का पूरा एक हिस्सा नमाज नहीं पढ़ी, कोई भी नहीं पढ़ी, सिर्फ रमजान होता था तो पढ़ती थी, क्योंकि रोजा नहीं कबूल होना, वरना वरना मतलब कि नहीं। मैंने मतलब कि मेरे मतलब कि देयर इज अ होल चंक ऑफ माय लाइफ जिसमें मैंने नमाज नहीं पढ़ी, एंड दिस इज मतलब कि नॉट, दिस इज अ वेरी एम्बैरेसिंग थिंग टू से। लेकिन इफ मैं यहाँ पे बैठ के ये नहीं कह रही कि बाकी लोग नहीं पढ़ते, क्योंकि मैं खुद उस चीज से गुजरी हुई हूँ। तो आई डोंट वांट हियर टू सिट एंड टेल एवरीवन कि मैं इस पोजीशन पे हूँ और तुम लोग सारा ये करो इस पोजीशन तक पहुंचने के लिए, क्योंकि आई डोंट थिंक आई एम एनीवेयर राइट नाउ। आई एम वेरी इनिशियल एंड वेरी एट द वेरी बिगनिंग, एंड आई वेंट थ्रू दोज थिंग्स। तो इफ देयर इज समवन, तो आई डोंट वांट टू मोर देन मतलब कि आई वॉन्ट टू इंस्पायर, या मुझे नहीं लगता कि अभी मेरे में ऐसा कुछ है जिससे कोई इंस्पायर कर सके, लेकिन आई बेसिकली वॉन्ट पीपल टू कनेक्ट टू इट। एंड आई थिंक कि आप जब आप ऑब्वियसली एज अ मुस्लिम, आप जब अपने पेरेंट्स को नमाज पढ़ते हुए देखते हो तो आपको होता है मैं मुझे भी आए, मैंने भी सीखनी है। लेकिन फिर जब आप थोड़े से अपने डिसीजन खुद लेना शुरू हो जाते हो तो आप भूल जाते हो, क्योंकि तब आपको, आप इस्लामियात पढ़ तो रहे हो, आपको नॉलेज मिल तो रही है, लेकिन आप इस्लामियात इसलिए भी पढ़ रहे हो क्योंकि आपको अच्छे ग्रेड लेना है उसमें, और वो आपकी एजुकेशन का हिस्सा है, जो कि एक वर्ल्डली चीज है, वर्ल्डली सक्सेस है, आपको उसमें मार्क्स लेने हैं, आपको उसमें ए ग्रेड लेना है। आप कभी कभी वो इससे सुन रहे होते हैं, ऑब्वियसली आपकी नॉलेज भी साथ साथ हो रही है, लेकिन ये इवन हमें जब क्लास में कोई सूरत पढ़ाई जाती थी या कहा जाता था याद करना है, तो हमें वो याद करनी है क्योंकि हमारा उसका ऑरल होना है और हमें उसमें मार्क्स लेने हैं। तो इट वाज समहाउ अटैच्ड टू द वर्ल्डली थिंग्स, एंड आई मतलब कि मुझे नहीं मतलब कि ऑब्वियसली इट्स समथिंग दैट इज नॉट समथिंग टू बी प्राउड ऑफ रियली, लेकिन आई जस्ट वांट टू बी ओपन हेयर, ताकि इफ समवन इज नॉट बीइंग एबल टू कनेक्ट टू एनीवन, क्योंकि उसको लगता है कि मैं जो भी जहाँ भी देखती हूँ वो इस लेवल के हैं, मैं तो उस लेवल पे पहुंच भी नहीं सकती, मैं तो अभी बहुत इनिशियल हूँ, तो उनको पता हो कि हर कोई इस फेज से गुजरता है। लेकिन आई थिंक कि ये टाइम शायद ज़रूरी होता है, क्योंकि फिर आपको इस बाद में ज़्यादा इम्पोर्टेंस आती है, और ऑब्वियसली आपके पेरेंट्स आपको एक टाइम तक ही एक चीज़ के बारे में बता सकते हैं, कर सकते हैं, उसके बाद आपको अपना डिसीजन खुद लेना होगा। एंड आई पर्सनली फील के हाँ, बहुत लोग बहुत कुछ कहते हैं, आप बहुत से लेक्चर सुन लो, आपको बचपन से कराया सिखाया जाए, लेकिन आई थिंक कि जो स्पिरिचुअलिटी है ना आपके अंदर, वो आप खुद, उसकी अर्ज होनी चाहिए आपके अंदर, और कोई आपके लिए आपके अंदर मुझे नहीं लगता डाल सकता है। अब जैसे कि मैं कह रही हूँ कि मुझे मतलब कि मेरे पेरेंट्स ने वो सब कुछ चीज़ सिखाई जो कि एक मुसलमान के माँ बाप को उसको सिखानी चाहिए, उन्होंने मुझे उतना बताया, लेकिन आगे मेरी मर्जी थी और मैंने कुछ अरसे तक नहीं उस चीज़ पे किया, जब तक कि मुझे खुद नहीं एहसास हुआ कि ओह मुझे करना चाहिए। एंड आई टेल यू गाइस कि क्या चीज़ ऐसी थी जिसने मुझे कहा कि नो, आई वांट टू कनेक्ट टू माय रिलीजन, आई वांट टू गेन नॉलेज ऑफ इट, आई वांट टू बी अ बेटर मुस्लिम। लेकिन देयर वाज अ टाइम व्हेन आई वुडंट नो कि क्यों, मतलब कि मुझे क्यों करना चाहिए या क्या है मतलब। हाँ मैं मतलब कि देयर इज अ वेरी मतलब कि मैं बहुत बोल रही हूँ, लेकिन देयर इज अ वेरी फेमस, आई डोंट नो इफ इट्स अ हदीस और समथिंग, लेकिन इट्स वेरी फेमस कि जो भी बिलीवर्स हैं वो एंड पे जन्नत में चले जाएंगे, ठीक है ना। मुझे नहीं पता, मतलब आई थिंक आई एम नॉट कोटिंग इट द राइट वे, लेकिन और नरेटिंग इट द राइट वे, लेकिन दिस इज मतलब कि आई थिंक यू ऑल नो के वी हर्ड समथिंग लाइक दिस, बट दिस शुडंट बी द रीजन वी शुड बी सिनिंग, और फिर एंड पे हम के हाँ हमें तो जन्नत मिली जानी क्योंकि हम अहले ईमान है। आई डोंट थिंक कि ये सही है, लेकिन मेरे ज़हन में बहुत अरसे तक ये चीज़ थी, तो आई एम नॉट गonna lie, आई हैव बिन थ्रू ऑल ऑफ दिस, कि मैंने कोई पूरे साल कोई नमाज नहीं पढ़ी, सिर्फ रमज़ान में आगे पढ़ी, रमज़ान ख़त्म हुआ वो भी छोड़ दी, रमज़ान में भी ईशा नहीं पढ़ी, फजर नहीं पढ़ी, फजर पढ़े बगैर सो गई। तो आई थिंक मतलब कि आई हैव फेयर शेयर ऑफ मी बीइंग a not really good example of being a Muslim. तो लेकिन it changed, and I'll tell you guys how it changed। और मुझे लगता है कि obviously
अगेन योर पेरेंट्स कैन टेल यू, या योर कम्युनिटी या योर टीचर आपको कोई कह सकता है, लेकिन एक टाइम आएगा कि अगर आपके जहन में वो चीज़ें बैठ नहीं रही ना, बातें, फिर आप उन चीज़ों को अवॉइड करना शुरू हो जाओगे, आप ऐसी डिस्कशन में नहीं जाओगे, आप ऐसे लोगों से बात नहीं करोगे, क्योंकि आपको किसी का मशवरा नहीं लेना। तो आई थिंक दैट somehow you should have this urge inside yourself। जब मैं उस वो टाइम पे थी, तो मुझे कोई कहता था कि तुम इन मौलवी को सुनो, इन स्कॉलर्स को सुनो, इनको सुनो, उनको सुनो, मुझे उनका असर नहीं पड़ता था, until I myself discovered the scholars I want to listen, या मैंने खुद डिस्कवर किया स्कॉलर्स जो मुझे इंस्पायर करते हैं। तो आई थिंक दैट एवरीवन हैव देयर पर्सनल जर्नी। और आप, मुझे लगता है एज अ मुस्लिम ऑब्वियसली यू कैन इंस्पायर समवन एंड यू कैन कनेक्ट, मतलब कि बी दैट पर्सन के अगला बंदा कनेक्ट करे और अगला बंदा आपको देख के वो चीज़ सीखे। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे के मुझे नहीं लगता कि यू कैन इम्पोज समथिंग टू समवन, क्योंकि स्पेशली इन माय केस आई थिंक के मुझे अपने मुझे सेल्फ मोटिवेशन मिली है। लेकिन जैसे मैं अभी ये सब कुछ बोल रही हूँ, मैं भी किसी की पॉडकास्ट सुनती थी और मुझे होता था कि नो, दैट्स इंस्पायरिंग। लेकिन मुझे लगता है कि टाइम टाइम लगता था। इनिशियली आप जो है वो, जब ज़्यादा कुछ हो तो फिर आप उन चीज़ों को अवॉइड करना शुरू हो जाते हो कि मुझे ये चीज़ें नहीं सुननी, मुझे नहीं करना, क्योंकि मुझे किसी की सुननी नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि कोई ना कोई चीज़ ऐसी होती है जो कि आपको अंदर से जो है वो, देयर इज दिस अर्ज और देयर इज दिस थिंग दैट डिस्टर्ब्स यू लिटरली, और जिसका जो है वो आंसर अगर आप सर्च करो तो दैट वुड bring you towards Islam and spirituality. What worked for me was that, not worked for me, but what in my case scenario ये हुआ था कि I am I'm scared, I was very scared of death, मरने से। और मुझे लगता है एवरीवन इज ऑब्वियसली, और मुझे लगता है कि जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत ही मौत है। और मतलब कि इट्स ऑब्वियसली द, मतलब कि इट्स ऑब्वियसली अ स्केरी थिंग। मैं हमेशा जो है ना, मैं कभी भी कोई नेगेटिव बात सोचती ही नहीं थी ज़िंदगी में, मैं अभी भी नहीं सोचती। लेकिन जैसे मैंने कभी ऐसी मूवीज़ नहीं देखी जो कि हॉरर मूवीज़ हैं, या जिनमें कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो रही है, या जिसमें ऐसी कोई अम, दिखा रहे हैं पावर्स, मैं ऐसी मूवीज़ नहीं देखती। मैं बिल्कुल ऐसी मूवीज़ नहीं देखती थी जिसमें कुछ ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि मैं के मतलब मुझे उस तरफ अपना ज़हन लाना ही नहीं था। लेकिन obviously death is something कि you can't avoid it when you see people you know, you have seen, you have um, spent time with, you are close with, how मतलब कि start dying, आपके ग्रैंड पेरेंट्स मतलब के मर जब चले जाते हैं इस दुनिया से, या फिर किसी की बहुत सडन डेथ हो जाती है, मतलब कि वो तो चलो ग्रैंड पेरेंट्स की डेथ होती है तो यूर लाइक ओ हाँ वो बूढ़े थे, या फिर किसी बुजुर्ग की होती है तो आप कहते हो ओ दे लिव देयर होल लाइफ। लेकिन कोई ऐसी इंसान की जो कि बहुत सडन डेथ हो जाए, देयर इन देयर मिड लाइफ और देयर इन देयर अर्ली ट्वेंटीज, लेट ट्वेंटीज, और someone who had their kids as school going बच्चे, या फिर someone who had no kids, someone who was themselves school going, तो मुझे लगता है कि वो डेथ्स आपको बहुत इफेक्ट करती हैं और आपको रियलिटी चेक मिलता है कि आई एम गोना गो टू। और मेरे ये नहीं है कि मैं पूरी जिंदगी गुजार के एंड पे 70 साल की जब होंगी तभी मरूंगी, मैं कभी भी मर सकती हूँ। और मुझे वो चीज़ बहुत ऑब्वियसली स्केयर करती थी, जब भी कोई होता था तो आई कुडंट स्लीप। जब भी किसी की डेथ होती थी तो मैं सो नहीं पाती थी बहुत अरसे तक, बहुत मतलब कि उस डेथ के काफ़ी टाइम बाद, और मैं सोचती रहती थी कि मेरे साथ क्या होगा, ये क्या होगा, वो क्या होगा। और पता है क्या है, जब आप इस एज में होते हो ना, और आपको एक चीज़, जब जैसे इस्लाम है, आपको पता है इस्लाम क्या है, आपको सब कुछ पता है, लेकिन आप इतने, आपको वो सब चीज़ें पता हैं जो आप पे फ़र्ज़ हैं, जिन चीज़ों से आपको मना की है, ऊपर ऊपर वाली सारी बातें पता हैं जो कि आपके पेरेंट्स ने बताई हैं या आपको इस्लामियात में पता है। लेकिन आप अगर आप दूसरे रिलीजन के लोगों को देख रहे हो, जैसे 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 आपको एक्सपोजर मिलता है आप और चीज़ें देख रहे हो, और या फिर आप एथिस्ट लोगों को देख रहे हो, आप इतनी ज़्यादा चीज़ें देख रहे हो, तो और आप अपने रिलीजन के बारे में सोच रहे हो, तो आपके जहन में नेचुरली क्वेश्चंस आते हैं, और हम ना उन क्वेश्चन से डरते हैं और हम फिर ना साइड पे रख देते हैं वो चीज़ कि नहीं मैंने ऐसा सोचना ही नहीं है।
और मुझे लगता है कि वो चीज़ इज कंट्रीब्यूटिंग कि हम फिर परस्यू ही नहीं कर पाते आगे, कि हम आगे और अपना बिलीफ स्ट्रांग ही नहीं कर पाते, क्योंकि हम वो क्वेश्चंस नहीं पूछते। हम कहते हैं कि नहीं, हमने नहीं पूछना, हम जहाँ हैं सही हैं। मुझे लगता है कि we should be asking those questions, or we should be finding the answers of those questions, क्योंकि आई थिंक क्वेश्चंस पूछना या क्वेश्चन जहन में होना इज द फर्स्ट स्टेप फॉर, मतलब कि अच्छे सही रास्ते के जाने की तरफ। अगर आप क्वेश्चन ही नहीं पूछ रहे किसी चीज के, या आप जिसका मतलब है आप सोच ही नहीं रहे उस चीज के बारे में, आप सही तरह सुन ही नहीं रहे, आप बस एक चीज के पीछे लगे हुए, लेकिन आप अपने दिमाग से नहीं सोच रहे, या आप उस आपकी बॉडी वो चीज कर रही है, लेकिन आप इंटरनली उस चीज के बारे में सोच ही नहीं रहे, कि आपको उस चीज के बारे में कोई क्वेश्चन है ही नहीं, या आप उस चीज के बारे में सर्च नहीं करना चाहते, यू डोंट वांट टू लुक फॉर द मीनिंग। आप कुरान पढ़ रहे हो अरेबिक में, लेकिन आप उसका तर्जुमा नहीं जानना चाहते, कि चलो ठीक है बस कुरान है मैं पढ़ लेती हूँ। तो मुझे लगता है कि हम लोग ना क्वेश्चन से डरते हैं, हम लोग डरते हैं कि पता नहीं हम इसके बारे में ज्यादा रिसर्च कर लें, और शायद मतलब कि गॉड फॉर सेक मे बी इस्लाम इज नॉट द ट्रुथ, हमें ये पता लगे, तो फिर हम क्या करेंगे। आई वॉज वेरी स्केयर्ड ऑफ दिस, कि मे बी इफ आई सर्च मोर एंड मोर एंड मोर, मे बी आई फिगर आउट दैट माई रिलीजन इज नॉट, मतलब नहीं है, इसके अलावा कोई और सही है, या मुझे ये हो। लेकिन द ब्यूटी ऑफ आवर रिलीजन इज दैट कि द मोर यू नो अबाउट इट, और जब आप दूसरे रिलीजन को भी इन डेप्थ देखोगे, पर्सनली मुझे इतना नहीं पता बाकी रिलीजन्स के बारे में, लेकिन आई वांट टू नो। और मैंने जितने भी स्कॉलर्स सुने हैं, वो चार मतलब के वेरी सर्टेन अबाउट देयर रिलीजन, या जिनको भी मैं सुनती हूँ, दे हैव, वो उन्होंने बताया है कि मैंने दूसरे रिलीजन को बाइस्ड नहीं होके देखा, कि मैं एज अ मुस्लिम देख रही हूँ, मैंने न्यूट्रल होके दूसरे रिलीजन को देखा है। तो जैसे जैसे आप दूसरे रिलीजन को देखोगे, जैसे जैसे आप अपने रिलीजन को करोगे, तो यू विल ओनली बी मोर सर्टेन अबाउट योर रिलीजन, and you will be only be more sure about your religion, or which will give you so much peace कि oh I'm at the right place। लेकिन जब आप कोई सवाल ही नहीं कर रहे, and obviously we are blessed to be born into a family जिसमें जिसमें सब कुछ प्रैक्टिस हो रहा है, लेकिन मैं ये सोचती थी कि यार, अगर मेरा कल को किसी से आर्ग्यूमेंट हो जाता है, और वो मुझसे पूछते हैं कि तुम क्यों मुस्लिम हो, तो मैं उसको ये बोलूँ क्योंकि मैं एक मुस्लिम घर में पैदा हुई हूँ, मेरे पास और कोई चीज़ नहीं है अपने रिलीजन को डिफेंड करने के लिए। अगर कोई मुझसे क्वेश्चनिंग करता है, मेरे पास उसकी आंसर होनी चाहिए। मुझे किसी को बताना चाहिए कि वाई आई डोंट चूज योर रिलीजन, एंड वाई आई एम अ मुस्लिम। मैं सिर्फ ये अपना नहीं कह सकती कि मैं मुस्लिम घर में पैदा हुई हूँ, तो मैं जो हूँ वो इसलिए मुस्लिम हूँ। ये सिर्फ इंसान ना अपनी एथनिक एथनिसिटी के साथ कर सकता है, कि हाँ मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं पाकिस्तान में पैदा हुई हूँ, हाँ मैं साउथ एशियन हूँ, मैं इस क्योंकि मैं यहाँ पैदा हुई हूँ, मतलब कि देयर इज नो अदर थिंग। लेकिन विद योर बिलीव यू हैव टू बी सर्टेन, ठीक है ना। और मुझे लगता है कि मुझे सबसे ज्यादा ये फील होता था कि ओ आई एम अ मुस्लिम बट आई कैन नॉट डिफेंड माई रिलीजन इन फ्रंट ऑफ एनी वन। मैं कुछ भी नहीं बोल सकती, मैं इसके अलावा क्या आर्ग्यूमेंट दूं कि व्हाई डिड आई चूज दिस रिलीजन। एंड आप ये आर्ग्यूमेंट तभी कर सकते हो जब आप दूसरों के रिलीजन पढ़ो, और अपना रिलीजन पढ़ो, और तब आप कहो कि हाँ आई चूज दिस रिलीजन, एंड दीज आर द रीजंस व्हाई, एंड दिस इज द रीजन व्हाई आई थिंक माय रिलीजन इज द ट्रुथ। और ये आप मतलब कि वो दूसरे रिलीजन में ये चीजें हैं जिसपे दैट डोंट मेक सेंस टू मी। तो आई थिंक दिस इज वन ऑफ द थिंग दैट रियली क्लिक्ड टू मी, जब मैंने सोचा कि मुझे अच्छा रिलीजन का नॉलेज लेना है। कि मैंने कहा कि यार मुझे पता तो कुछ है ही नहीं, हाँ मैं नमाज पढ़ रही हूँ, मैं कुरान अरेबिक में पढ़ रही हूँ, मुझे एक नमाज रटी हुई है, मैं वो पढ़ी जा रही हूँ, मुझे मतलब मुझे नहीं, मुझे इसका क्या है, या ये तो मेरा बिलीव हुआ ना। मैं एक बहुत अच्छी बुक पढ़ रही हूँ आजकल, और मैंने ना ये भी चीज़ की है कि आई हैव स्टार्टेड रीडिंग बुक्स जिनमें कोई इंसान एथिस्ट हो, या फिर किसी और रिलीजन का, और वो इस्लाम में कन्वर्ट करे, क्योंकि मुझे उनके एंगल से देखना है कि आपने क्यों ये रिलीजन चूज किया। तो उसमें था कि द गर्ल हु कन्वर्टेड, वो एक गर्ल की स्टोरी है, शी इज रेज्ड बाय एथिस्ट पेरेंट्स, और वो अमेरिका में होती है, लेकिन वो फिर इस्लाम कबूल कर लेती है, देन शी मूव टू इजिप्ट, और फिर वो वहाँ का वो कल्चरल बीच में जो अम, इस्लाम
से ही हम सारे मुस्लिम ही हैं, लेकिन कंट्री टू कंट्री हाउ कल्चर डिफरेंसेस आ जाते हैं, वो सब कुछ उसमें बहुत इन डेप्थ और बहुत अच्छी बुक है। लेकिन उसमें ये था कि शी वाज सेइंग कि दिस पर्सन सेज कि आई डोंट बिलीव इन इस्लाम, आई एम सर्टेन अबाउट इस्लाम। तो मुझे हुआ कि आई वांट टू बी सर्टेन अबाउट इस्लाम। लेकिन गेटिंग बैक टू दैट डेथ टॉपिक, तो मुझे बहुत उस चीज़ से होता था। लेकिन मैं एक बार एक लेक्चर सुन रही थी, टीवी पे ही लगा हुआ था, तो उसमें वो कहते हैं कि अल्लाह को खुश करो, और मौत से ज़्यादा आसान कोई चीज़ नहीं है। दिस वाज बैक इन लाइक 2017, 2016। और ना मेरे वो चीज़ ना, और कि अल्लाह को खुश, अल्लाह अगर आपसे खुश है, इफ गॉड इज हैप्पी फ्रॉम यू, इफ अल्लाह इज हैप्पी फ्रॉम यू, तो देयर वुड बी नथिंग मोर इजियर देन डेथ। और फिर उन्होंने कहा कि लेकिन अगर अल्लाह आपसे खुश नहीं है ना, तो आपको मौत से ज़्यादा मुश्किल चीज़ कोई नहीं लगेगी। और उस वक्त मैं बैठी थी, मुझे मौत से डर इसलिए लग रही थी क्योंकि मैंने कुछ ऐसा नहीं किया जिससे अल्लाह मुझसे खुश हो। और वो चीज़ ना मेरे जहन में स्टक रह गई, क्योंकि मुझे सबसे मेरा माई बिगेस्ट फेयर वॉज डेथ। और तो इस वजह से मुझे जो है ना, वो एक चीज़ स्टक रह गई कि मुझे अल्लाह को खुश करना है, और इस ताकि मेरी मौत आसान हो, क्योंकि मैंने मरना तो है ही एक ना एक दिन। तो दिस इज समथिंग दैट वाज वेरी इनिशियल टू मी, कि मुझे जो है वो, ये मेरी फर्स्ट मोटिवेशन थी जिसने मुझे कहा कि नहीं, आई वांट टू। तो उसने मुझे ये, मतलब कि तब मैंने ये नहीं सोचा था कि आई वांट टू गेन रिलीजियस नॉलेज, लेकिन तब मैंने ये सोचा था कि आई हैव टू प्रे 5 times a डे, और बेसिकली प्रे एंड मेक अल्लाह हैप्पी। और आई थिंक कि वैसे ना ये बहुत अच्छी, मतलब आई थिंक कि रिमेम्बरिंग दैट देयर बी अ डे व्हेन यू विल गो बैक टू अल्लाह should serve as a motivation and a reminder that, मतलब कि you have to follow Sharia and you have to follow Quran, you have to read Quran, you have to pray. I think it's, मतलब कि it's a very good reality check. And I don't know how could I assure you guys, how could I tell you guys, लेकिन the time you start being a good Muslim, yeah, you start praying that way, you start doing the things to make Allah happy, आपकी इंटेंशन हो कि यार मुझे अच्छा मुसलमान बनना है, आप पूरे दिन की सारी नमाजें अच्छे तरीके से पढ़ो, तो फिर मतलब कि you are not scared of death anymore. If anyone here is scared of death, तो मैं आपको मैं मुझे बहुत डर लगता था। लेकिन जैसे जैसे मैंने मतलब कि ये सब कुछ किया ना, मैंने देखा है कि मेरा डर खत्म हुआ है, टू द पॉइंट कि आई एम नॉट, मतलब कि अगर मतलब मुझे बिल्कुल भी डर नहीं है। और मैंने ये पिछले से पिछली पॉडकास्ट में भी बात की थी कि एक कभी एक टाइम ऐसा होता था कि जिस दिन मैं सारी नमाजें पढ़ूँ ना, उस दिन मैं रात को सो रही हूँ तो मैं कहती थी कि ओ, इवन इफ आई डाई टू नाइट, तो मुझे मतलब कि कोई, मतलब आई एम नॉट स्केयर्ड ऑफ इट, आई एम प्रिपेयर्ड। लेकिन जिस दिन मेरी कोई नमाज स्किप हो जाती थी, उस दिन मैं कहती थी कि ओ आई डोंट वांट टू डाई, मतलब कि अगर मैं आज मर गई तो क्या होगा, मैंने तो अपनी नमाजें भी नहीं पूरी की है वो। तो आई थिंक कि आई डोंट, मतलब कि इट रियली रियली रियली, मतलब कि आई डोंट नो व्हाट टू से, व्हाट वर्ड टू यूज, लेकिन आपका डर खत्म हो जाता है द टाइम यू स्टार्ट प्लीजिंग अल्लाह, या यू स्टार्ट डूइंग द गुड डीड्स, और आप अच्छे मुसलमान बनना शुरू कर दो। आई हैव सीन दैट टू माई इन माई सेल्फ। दिस इज वन रीजन। द सेकेंड रीजन इज दैट कि ये मेरे साथ नहीं हुआ, लेकिन मैंने दूसरे लोगों में बहुत देखा है कि जब आप पे कोई हार्डशिप आए, आपको कोई प्यारा आपसे बिछड़ जाए, आप पे कोई बहुत मुश्किल टाइम आए, आप कोई ऐसी चीज़ है कि किसी इंसान ने आपको आपके साथ ज्यादती की है, और आपको उस चीज़ का जो है वो इंसाफ नहीं मिला, तो आई थिंक कि उससे आपको ये मोड, उससे उससे भी आप रिलीजन की तरफ कनेक्ट होते हो, क्योंकि देन यू स्टार्ट बिलीविंग इन द लाइफ आफ्टर डेथ। और फिर आप, आपको इस चीज़ पे यकीन आता है, क्योंकि ये सबसे बड़ा ईमान का हिस्सा है कि आप मौत के बाद की ज़िंदगी पे यकीन रखना कि देयर विल बी अ जजमेंट डे, देयर वुड बी, मतलब कि माई सिंस एंड माई गुड डीड्स वुड बी कंपेयर्ड। जन्नत होगी, दोज़ख होगी, जहाँ जन्नत में मुझे अपने प्यारे अजीज़ मिलेंगे, या मुझे क़यामत वाले दिन अपना इंसाफ मिलेगा। और अगर आपके साथ दुनिया में कोई भी ज़्यादती हुई हो, या आपका कोई अपना बिछड़ जाए आपसे, या कुछ भी ऐसा हो जाए, तो मुझे लगता है कि देन अगेन, इफ़ यू हैव द बिलीव, या यू स्टार्ट बिलीविंग द लाइफ आफ्टर डेथ, और आप अपना अल्लाह पे छोड़ दोगे कि अल्लाह ने, आपने मेरा इंसाफ लेना है, जो मेरे साथ ज्यादती हुई है, या जो भी मेरा इंसान चला गया इस दुनिया से, मैंने उससे इस जिंदगी के बाद जो
परमानेंट लाइफ है उसमें मैं उससे मिलूंगी, तो दैट ऑल्सो सर्व्स एज अ मोटिवेशन फॉर यू टू स्टे कनेक्टेड टू अल्लाह, क्योंकि आपको अल्लाह को खुश करना है, ताकि आप मतलब जब क़यामत का दिन हो तो जो भी आपके साथ ज्यादतियां हुई हैं, जिस इंसान से आप मिलना चाहते हो, आप उससे रीयूनाइट हो जाओ। तो दिस इज समथिंग दैट आई हैव रियली 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 हर्ड फ्रॉम पीपल के दिस सर्व्स देम एज अ मोटिवेशन टू स्टे कनेक्टेड टू अल्लाह। नाउ अब बात ये है कि जब आप सोचते हो कि मुझे एक अच्छा मुसलमान बनना है, तो उसमें बेयर मिनिमम चीज़ क्या होती है? नमाज। और सबसे पहली चीज़ होती है, और हमने सबसे पहली चीज़ सीखी है नमाज पढ़ना। सबसे पहले ऑब्वियसली होता है शहादत, और उसके बाद सेकंड चीज़ होती है नमाज। अब मेरे साथ क्या हुआ है, जब मैंने ये सोच लिया कि ओ मुझे मुसलमान बनना है, मुझे इबादत करनी है, तो मैं नमाज पढ़ना शुरू हो गई। लेकिन नमाज तो मैंने, क्योंकि अरबिक मेरी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है और नमाज मैंने याद की हुई है, तो व्हाट आई स्टार्टेड देन नोटिसिंग इज दैट कि मैं नमाज तो पढ़ रही हूँ, सही पढ़ रही हूँ, पूरी पढ़ रही हूँ, लेकिन मैं उस नमाज में अटेंटिव नहीं हूँ। मैं नमाज बस पढ़ रही हूँ, मुंह से बोल रही हूँ, लेकिन मेरे जहन में उसका मीनिंग नहीं चल रहा। मुझे पता नहीं चल रहा मैं क्या पढ़ रही हूँ। मैंने पढ़ ली है, लेकिन वो जो मुझे एक चीज़ रटी हुई थी ना, वो पढ़ ली है। मेरे जहन में उस टाइम कुछ और चल रहा था जब मैं नमाज पढ़ रही थी। ऐसा मेरे साथ बहुत हुआ, और आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल कुड रिलेट टू इट। मुझे अभी तक मैं इस चीज़ से स्ट्रगल करती हूँ, लेकिन मैं अपने आप को झंझोड़ती हूँ और मैं कहती हूँ नहीं रविया, स्टे फोकस ऑन नमाज, क्योंकि ऑब्वियसली अराबिक इज योर नॉट योर फर्स्ट लैंग्वेज। और आप तो अपनी ज़ुबान में भी कोई क्लास में लेक्चर हो रहा हो, तो इट्स वेरी इजी फॉर यू टू गेट इन टू अनदर वर्ल्ड। लेकिन मैं नमाज पढ़ रही होती थी, और मैं सही नहीं पढ़ रही, मतलब कि मैं ध्यान नहीं दे रही उस चीज़ की तरफ। मैं बस जल्दी जल्दी पढ़ के बस निपटा रही हूँ कि हाँ ठीक है, मैं आई डिड माई टास्क, बस सही है। वो जो अगेन अ वेरी द थिंग दैट आई स्टार्टेड नोटिसिंग आफ्टर अ वाइल कि हाँ ठीक है रबिया, तुम नमाज तो पढ़ना शुरू हो गई हो, लेकिन नमाज तुम पढ़ कैसी रही हो? और मुझे लगता है कि वो ना फिर लाइफस्टाइल बन जाता है, आपको नहीं समझ, आपका ना लाइफस्टाइल बन जाता है कि आपको समझ नहीं आती, आप नमाज पढ़ रही हो, लेकिन आप अपने जहन में सोच रहे हो कि हाँ ठीक है मैंने पढ़ ली, और असल में आपने मतलब कि यू गॉट नथिंग फ्रॉम दैट नमाज, यू डिड नथिंग, आपने सही तरह दुआ नहीं मांगी बैठ के, आपने सही तरह तस्बीह नहीं की। और मुझे लगता है कि ये मेरे साथ इनिशियल स्टेजेस पे बहुत हुआ था कि मैं नमाज तो पढ़ना शुरू हो गई थी कि हाँ मेरी ड्यूटी है, मुझे मुझे मौत से डरनी है, मुझे अल्लाह ताला को खुश करना है, तो मुझे नमाज पढ़नी है, लेकिन मैं नमाज सही से नहीं पढ़ रही थी। और कुछ अरसे बाद मुझे ना रियलाइज़ हुआ, और मैं सबको मैं कहने भी लगी कि मुझे ऐसा लगता है मेरी नमाज कबूल नहीं होती, क्योंकि मैं नमाज सही से पढ़ती नहीं हूँ, और मैं पढ़ ही नहीं रही, और मैं उसमें ध्यान नहीं दे रही। तो इस वजह से मुझे जो है वो मेरी नमाज कबूल ही नहीं हो रही, और मुझे लग रहा है कि कोई असर नहीं हो रहा, मैं नमाज पढ़ूँ ना पढ़ूँ, और कुछ भी नहीं हो रहा। और क्यों? और उसकी यही वजह है क्योंकि मैं जब नमाज पढ़ रही हूँ, मेरा जहन तो कहीं और है, तो मैं तो आई एम प्रेइंग फॉर द सेक ऑफ प्रेइंग, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग, मैं दुआ भी सही तरह नहीं मांग रही आगे से। तो आई थिंक कि दिस वाज समथिंग दैट वाज द सेकंड थिंग, कि मैंने जब सोच लिया कि हाँ मुझे अच्छा मुसलमान बनना है, लेकिन दिस वाज द सेकंड थिंग दैट वुड हैपन टू मी। Then I started praying the right way. I tried. I मतलब कि मैं ये नहीं कहूँगी I still get, मतलब मुझे फिर थोड़ा सा कुछ हो जाता है या फिर मैं चल जाती हूँ, लेकिन now I have this thing in my mind, तो I attempt to pray the right way. Now I'll tell you the things जो कि मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं, लेकिन दिस इज नॉट सोली माई वर्ड्स। और मैं एक जो हूँ वो पॉडकास्ट सुन रही थी, उनमें उन्होंने ये चीज़ बोली और मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैंने लिख ली। लेकिन दिस वर्क्स फॉर मी, तो आई होप दिस वर्क्स फॉर यू टू, बट आई कैन नॉट टेक क्रेडिट फॉर इट। सो what when I say I started praying the right way, उसका क्या मतलब है? पढ़ तो मैं सही रही थी, जो मतलब कि जो नमाज हमें सिखाई है बचपन में, या जो मुझे याद है मैं वही पढ़ रही थी, उसमें मैंने कुछ ऐड नहीं किया, और अपेरेंटली, लेकिन अंदर से बहुत कुछ, मतलब कि देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग दैट यू हैव टू चेंज। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल इज दैट के clear your head clear your head before नमाज, before performing नमाज, कि आप अपना जहन खाली कर दो। आप जो भी मोबाइल पे लगे हुए हो या जिस भी है, आपको वो चीज़ जहन से निकालनी है, आपको अपने खाली जहन से नमाज पढ़नी है। जो भी आपका वर्ल्डली अफेयर जो भी है,
वो सब कुछ आपको छोड़ के नमाज पढ़नी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू क्लियर योर हेड फ्रॉम द थिंग्स दैट आर बॉदरिंग यू या दैट आर रनिंग इन योर हेड। आपको अब 5-10 मिनट के लिए वो चीज़ें निकालनी है। Secondly, you have to listen to your words while reciting. This is something that really helped me कि आप जब नमाज पढ़ रहे हो तो आपको अपने जो आप बोल रहे हो लफ्ज वो सुनने हैं। और आपको पूरी नमाज जब हमें कराई है तो हमें साथ उसका तर्जमा भी कराया है। तो ट्राई टू कीप और ट्राई टू कीप दैट इन माइंड कि आप सूरत फातिहा पढ़ रहे हो तो आप जो भी लाइन पढ़ रहे हो उसका तर्जमा आपके जहन में चल रहा हो। ठीक है। द नेक्स्ट थिंग इज के कनेक्ट टू अल्लाह इन योर प्रेयर। वन और ये बहुत मशहूर है कि आप जब भी नमाज पढ़ रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि अल्लाह आपको देख रहा है और अल्लाह आपकी सुन रहा है। और आप जो भी दुआ करोगे यू आर मतलब के यू हैव दिस कनेक्शन विद गॉड। तो आपको वो जहन में रख के सोचनी है पढ़नी है नमाज के मतलब कि मुझे अल्लाह देख रहा है, मैं अभी जो दुआ मांगूंगी वो अल्लाह सुन रहा है। ठीक है। एंड व्हेन यू स्टार्ट डूइंग ऑल ऑफ दिस, जब आप अपना जहन उस नमाज में लगाओगे, जब आप अपना एक एक वर्ड सुनोगे, आराम से नमाज पढ़ोगे, तो ये होगा कि द प्रेयर इज नो लॉन्गर अ बर्डन टू यू। और मैंने ये चीज़ बहुत नोटिस की है। मुझे इनिशियली इतना मुश्किल होती थी नमाज पढ़ने में, नमाज की तरफ आने में, 5 वक्त की नमाज पढ़ने में, एक नमाज पढ़ने में, दो नमाज पढ़ने में। लेकिन जैसे जैसे मैंने स्टार्ट कर दिया अब मुझे फील ही नहीं होता कि ये कोई चीज़ भी है कि दिस इज समथिंग। अब मैं एक बीच में नमाज छोड़ दूँ ना तो मुझे फील होता है कि यार मैंने नमाज छोड़ दी, मतलब कि आई गेट द गिल्ट। पहले इतनी मैं नमाजें छोड़ दी मुझे फील भी नहीं होता था कि अच्छा मैंने नमाज छोड़ दी, मतलब कि मुझे फील भी नहीं होता था कि मैं गुनाह कर रही हूँ। ठीक है। लेकिन अब जब से मैंने वो चीज़ मतलब कि प्रैक्टिस करना शुरू की है तो इट्स नॉट अ बर्डन फॉर मी एनी मोर। इट्स मतलब कि इट्स समथिंग, इट्स अ पार्ट ऑफ माई लाइफ। और बल्कि इट्स द मोस्ट इजिएस्ट थिंग आई डू पूरे दिन में। ठीक है। um the prayer ends up becoming an escape when you are praying properly, कि वो आपके लिए एक escape बन जाती है। जैसे मैंने ये बात भी की है कि आपका जो भी आपका दिमाग जहाँ भी फंसा हुआ है, आपका कोई असाइनमेंट है, आपका कोई डेडलाइन है, जो भी है या जो भी आपका है, तो जब आप वो चीज या आपको किसी भी किस्म की कोई टेंशन है तो व्हेन यू स्टार्ट प्रेइंग तो यू रियलाइज कि द प्रेयर इज एन एस्केप फ्रॉम दैट एंड इट्स गिविंग यू एक्चुअली गिविंग यू पीस एंड होप कि वॉट एवर यू आर गोइंग थ्रू इज नॉट गना स्टे फॉर एवर। ठीक है। फिर द प्रेयर becomes your greatest relief, it brings you peace, it brings it becomes your relief, and this is something that I can assure you कि it does that once you start praying regularly। और जब आप अपने लाइफस्टाइल में ले आते हो ना वो नमाज, तो वो आपके लिए एक तो बहुत आसान चीज़ हो जाती है और फिर आपको ना उस चीज़ से सुकून मिलना शुरू हो जाता है। और आप एक नमाज छोड़ो ना तो फिर आपको कुछ एंग्जाइटी होना शुरू, नॉट एंग्जाइटी लेकिन आपको बेचैनी होना शुरू हो जाती है। इट comforts you, इट्स मतलब कि इट्स द बेस्ट थिंग फॉर यू एंड आई कैन अश्योर यू दैट। मुझे लगता था कि नमाज पढ़ना बहुत ही कोई मुश्किल काम है जब मैं पढ़ती नहीं थी। जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि नमाज से ज़्यादा आसान काम तो इस दुनिया में कोई है ही नहीं। और मुझे अब बहुत मतलब कि आई थिंक आई एम सो ग्रेटफुल। और मैं हमेशा ये करती हूँ कि अच्छा जो चीज़ मैंने अभी तक अचीव की है या जो भी मैंने की है, आई होप कि आई कंटिन्यू दैट एंड आई ऑलवेज प्रे के Allah do not let Allah do not let my heart deviate after that what you have guided us। and this is a dua actually, इसकी अरेबिक जो है वो है भी, लेकिन वो मैं पढ़ नहीं सकती क्योंकि अभी आई एम वेरी शाय कि मैं कुछ अरब नॉट आई एम नॉट शाय, लेकिन मुझे है कि मैं कोई गलती ना कर दूं और इस वजह से मैं कर नहीं रही। लेकिन यू ऑल कैन सर्च अबाउट इट, इट्स इन I can't even tell what's मतलब I'll post it, it's in Surat Al Imran I think or it's in Surat Baqarah, I don't know। मैं ना actually I'll post this on my story, लेकिन it's a very beautiful दुआ कि जब आप इस पोजीशन में हो कि आप अल्लाह से दुआ करो कि मुझे जो भी आपने अल्लाह ताला ने प्रोवाइड की है कि मेरा दिल इससे ना फेरे, मैं इसमें और जाती हूँ। देयर इज अनदर वेरी मतलब के ब्यूटीफुल आयत इन सूरत बकरा, और इसकी मैं अरेबिक पढ़ूंगी कि और आई होप कि कोई गलती ना हो, लेकिन अगर कोई हो तो प्लीज़ अल्लाह फॉरगिव मी। लेकिन इट्स ला युकल्लिफुल नफ्सन इला वुसअहा। और
हम बहुत देखते हैं, आई थिंक हमने ये आयत बहुत देखी है, मतलब कि बहुत बहुत लोग पोस्ट करते हैं इसका मतलब, इसका लिटरली मतलब ये है कि अल्लाह डज नॉट चार्ज अस ऑल मोर देन इट्स कैपेसिटी। बहुत लोग ये लगाते हैं कि अल्लाह किसी को भी उसकी उस अल्लाह किसी भी इंसान को उसकी उससे ज्यादा नहीं आजमाता, उसकी पेशेंस से ज्यादा, या वो जितना बर्दाश्त कर सके बर्दाश्त से ज्यादा अल्लाह ताला किसी पे इतनी आजमाइश नहीं डालता। अब हम ना दो तरह इसके मीनिंग देखते हैं। आई रिसेंटली रिसेंटली लर्न के इसको हम दो तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं इस आयत को। और एक तो इंटरप्रिटेशन जो कि, क्योंकि आई हैव सीन दिस आयत एंड आई एम श्योर एवरीवन हैज सीन दिस आयत अ लॉट इन एवरीवन स्टोरी, के कि दे टेक इट एज अ हार्डशिप्स दैट दे हैव इन दिस वर्ल्ड, जो भी उनको तकलीफ होती है वो उस पे लगाते हैं कि अल्लाह ताला किसी की भी जान पे उससे ज्यादा तकलीफ नहीं देगा। और मुझे लगता है कि मतलब कि इट गोज इन दैट कॉन्टेक्स्ट। लेकिन जो दूसरी मैंने इसकी इंटरप्रिटेशन जो कि आई जस्ट लर्न दिस रमजान, वो है कि अल्लाह ताला के जो भी कमांड्स हैं हमें, जो भी अल्लाह ताला ने हमें इबादत की चीजें दी हैं, वो अल्लाह ताला ने हमारी जान से ज्यादा नहीं हमें दी। अ, हमें उतनी नहीं दी जितनी हम बर्दाश्त ना कर सकें। और जैसे नमाज है, वी ऑल कैन प्रे नमाज, मैं मतलब कि जो भी नमाज 5 वक्त की पढ़े उनको पता है कि वो आराम से पढ़ सकते हैं। और जो लोग नहीं पढ़ सकते, मतलब कि जो लोग खड़े नहीं हो सकते या जिनको जो भी हेल्थ इशू है, देयर इज एन एक्सेप्शन फॉर देम, वो बैठ के भी पढ़ सकते हैं। आप बहुत बीमार हो तो आप मतलब कि देयर इज एक्सेप्शन अल्लाह हैव मेड फॉर यू। अगर आप रोजे, मतलब कि हम पे फर्ज है, हम मर नहीं जाते, मतलब कि रोजे मतलब जो भी एक नॉर्मल इंसान है, वी आर नॉट वी, हमें ये नहीं कहा कि पूरे हफ्ते के लिए या पूरे महीने के लिए भूखे रहना है। जितना का है हम बहुत अच्छे से वो टाइम गुजारते हैं, और इट्स नॉट लाइक वी आर नॉट डाइंग इफ वी आर हेल्दी। लेकिन अगर आप आपकी हेल्थ कंडीशन नहीं है नमाज पढ़ने की, देयर तो देयर इज एन एक्सेप्शन फॉर यू, अल्लाह ताला ने आपके लिए एक्सेप्शन मतलब के की है। आप किसी और को रोजे रखवा सकते हो, या आप खुद रख लो, या आपका छूट गया, मतलब कि देयर इज एक्सेप्शन अल्लाह हैव मेड फॉर यू। आप पे हज फर्ज है, या तो भी अल्लाह ताला ने कहा है कि इफ यू कैन अफोर्ड। और हम लोग वेकेशंस पे जाते हैं, मैं वेकेशन में नहीं, मैं हम क्यों बोले? लेकिन लोग वेकेशंस पे जाते हैं, या मैं भी वेकेशंस पे जाती हूँ, ठीक है ना? तो आप फिर उम्रा करने भी जा सकते हो, लेकिन आप नहीं अगर वो चीज़ अफोर्ड कर सकते तो आप पे वो चीज़ फर्ज नहीं है, हज, सॉरी। तो आई थिंक तो इस मतलब हदीस सॉरी, इस आयत का ये भी मतलब है कि आप पे जो भी अल्लाह ताला ने इबादत फर्ज की है वो आपकी जान से ज्यादा नहीं की, इतनी नहीं, उससे ज्यादा नहीं की जितनी आप बर्दाश्त ही ना कर सको। एंड आई थिंक इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल मीनिंग और वेरी एक्यूरेट मीनिंग। तो दैट्स दैट। और व्हाट एल्स आई हैव टू टॉक अबाउट, मुझे पता भी नहीं चला, इट्स ऑलरेडी 42 minutes। बाय द वे आई एम अगेन रिकॉर्डिंग दिस एपिसोड एट 2 AM, क्योंकि मुझे उसके अलावा कोई और बेहतर टाइम मिलता ही नहीं है। इट्स ऑलरेडी वेडनेसडे। अच्छा, तो नेक्स्ट थिंग इज दैट कि आई टॉक्ड अबाउट माय इनिशियल स्टेज, के फिर नमाज और ये वो। देन मैंने जैसे कि पहले बोला कि मैंने नमाज तो पढ़ रही हूँ और मैं ये सही तरह नमाज पढ़ रही हूँ। देन वो मेरे जहन में चीज़ आई कि but I can't defend my religion. I don't have enough knowledge of my religion. I don't know enough. मैं फिर भी सवाल नहीं करती थी। और जैसे कि मैंने कहा कि इंसान में सवाल आते हैं, और उन सवालों के आपको जवाब तभी पता होंगे जब आप अपने रिलीजन को इन डेप्थ पढ़ो। तो विच इज समथिंग दैट came into me the last year कि I want to know more about my religion. I want to have knowledge about it. I want to learn each and everything. जैसे कुरान है, मुझे पता उसकी ट्रांसलेशन क्या है, मुझे जैसे ये मैंने अभी एक आयत इंटरप्रेट की है, मुझे ये इंटरप्रिटेशन इसकी ये दूसरा मतलब तो पता ही ना होता अगर मैं इसके बारे में रिसर्च ना करती, या सोचती ना, या मैं लोगों को ना सुनती। तो देन आई स्टार्टेड वॉचिंग थिंग्स ऑन माई ओन। और क्योंकि मुझे लगता है कि ऑन माई ओन मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अगेन पीपल कैन टेल यू वी आर born इन अ मुस्लिम फैमिली, तो हमें बचपन से कहा जाता है, लेकिन आई थिंक no one can give you better advice than yourself if you're honest to yourself. हजरत उमर रजी ताला जो हैं वो उनका है ये कॉल, नॉट कॉल, जो भी है, मतलब कि उन्होंने ये चीज बोली है कि देयर इज नो ग्रेटर मिरर देन सेल्फ
reflection, and no one knows you better than yourself. तो आपके अंदर वो अर्ज हो, और मुझे लगता है कि होती है हर किसी की। और जैसे मैंने बोला कि हर किसी के अंदर वो क्वेश्चंस होते हैं, और अगर आप उन क्वेश्चंस के आंसर ढूंढना ही शुरू कर दोगे ना, आपका खुद ही दिल इसकी तरफ हो जाता है। जब आप कुरान पढ़ते हो तो आपके अंदर अर्ज होती है कि यार मुझे इसका ट्रांसलेशन पता हो। जब आप सुनते हो कि देयर इज, एक तो अपेरेंट ट्रांसलेशन है ना कुरान की, बट देयर इज दिस डीपर लेवल मीनिंग इन एवरी ट्रांसलेशन, और इतनी तफसीर है, और वो कुछ कुछ लोग ही उस लेवल तक जाते हैं, तो आपका भी दिल चाहता है कि यार मैं उस लेवल तक जाऊं। तो आई थिंक दिस इज मतलब कि ये स्टेप बाय स्टेप चीज आती है। पहले ऑब्वियसली आप बेयर मिनिमम से शुरू करते हो, जो चीज आप पे फर्ज है, लेकिन द मोर यू गेट इनटू इट द मोर यू वांट टू नो अबाउट इट। फॉर मी इट वाज दैट कि आई वांट टू हैव नॉलेज अबाउट माय रिलीजन, कि मैं आई वांट टू बी सर्टेन अबाउट माय रिलीजन। यस, मतलब कि हाँ मैं बिलीव करती हूँ, लेकिन मुझे अपने फेथ पर सर्टेन होना है कि हाँ ये है, एंड आई कैन गिव यू एविडेंसेस, आई हैव प्रूफ, मेरे मुझे अहादीस पता हो जिनको मैं कोट करूं और मैं कोई चीज़ बता सकूं। एंड अभी मैं जैसे नमाज है, आई हैव काइंड ऑफ, मतलब आई एम प्रैक्टिसिंग दैट, आई हैव समहाउ अचीव दैट। लेकिन मुझे लगता है कि विद द नॉलेज आई एम, मतलब आई हैव जस्ट स्टार्टेड दैट, तो इस वजह से उसके बारे में ज़्यादा बोल नहीं सकती। लेकिन व्हाट वर्कड फॉर मी, आई आई कैन टेल यू व्हाट वर्क फॉर मी, या मैं कैसे कर रही हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली आप जब साथ एक स्कूल जा रहे हो या यूनिवर्सिटी जा रहे हो या कॉलेज जा रहे हो, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू कीप अप, और वो आप इन चीज़ों के बारे में भी सोचो, बट यू हैव टू अगेन थिंक अबाउट इट, क्योंकि द अल्टीमेट गोल इन योर लाइफ इज टू प्लीज अल्लाह, ताकि आपको मौत से डर ना लगे। ये सारी चीज़ें यही रह जानी है। जब आप जितना ज़्यादा आप रिलीजन के बारे में सुनते हो ना, उतना ज़्यादा आपको रियलाइज होता है कि यार ये दुनिया तो इतनी टेम्परेरी है, मैं किन चीज़ों में लगी हुई थी। लेकिन आई थिंक इफ व्हाट आई डिड वाज दैट कि मैं आई लव पॉडकास्ट, तो मैंने पॉडकास्ट सुनना शुरू की लोगों की। जैसे मैं क्योंकि मुझे लगता है कि फॉर मी आई रियली, मतलब पॉडकास्ट हैव बिग इन्फ्लुएंस इन माय लाइफ। और फिर मैंने स्टार्टेड लिसनिंग टू पॉडकास्ट ऑफ पीपल जो कि इस्लाम के बारे में बता रहे हैं, कोई ना कोई नॉलेज दे रहे हैं, क्योंकि व्हाट आई नीड इज नॉलेज। आई शेयर्ड ऑन माय इंस्टाग्राम स्टोरी टू कि आई हैव स्टार्टेड जर्नलिंग, कि मैं कोई भी लेक्चर सुन रही हूँ तो मुझे जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिलते हैं मैं वो लिखती हूँ, ताकि मेरा जहन डाइवर्ट ना हो। आई लव एक्चुअली राइट टेकिंग नोट्स जो भी मैं सुन रही हूँ। तो आई स्टार्टेड लिसनिंग टू रिलीजियस पॉडकास्ट। मैंने बताई भी अपनी स्टोरीज पे जो मैं आजकल सुन रही हूँ, और अगर किसी को रिकमेंडेशन और चाहिए तो प्लीज़ फील फ्री टू डीएम मी। नेक्स्ट थिंग फिर मैंने ये की कि आई टोल्ड यू ऑल कि मुझे बुक्स पढ़ने का भी शौक है, तो मैंने कभी भी स्पिरिचुअल बुक नहीं पढ़ी थी, लेकिन मुझे लगा कि ओ आई शुड रीड समथिंग जिसमें ऐसी चीज़ों के बारे में है। तो मैंने जो अपनी फेवरेट चीज़ें थी जो मैं कर रही हूँ, मैंने उसमें वो चीज़ अडेप्ट करने की कोशिश की, या मैंने उनसे नॉलेज हासिल करने की कोशिश की। एंड आई थिंक दीज टू आर ग्रेट, टू ग्रेट थिंग्स। इफ़ यू लव रीडिंग, तो आप कोई ऐसी बुक पढ़ो जिसमें कोई मुस्लिम अपनी ऑटोबायोग्राफी अपना बता रहा है सब कुछ। और इफ़ यू लाइक लिसनिंग टू पॉडकास्ट, देयर इज़ अ प्लेंटी ऑफ पॉडकास्ट जो कि वो इस चीज़ के बारे में बात कर रही हैं। और रमज़ान में मुझे लगता है कि आई एम मोर लिसनिंग टू इट, मैं बहुत ज़्यादा कर रही हूँ, मैं ज़्यादा सुन रही हूँ, लेकिन मतलब कि इफ़ यू आर अडेप्टिंग इट इन योर डेली लाइफ, तो मैं पर्सनली ये करती थी कि जब मैं सुबह यूनिवर्सिटी जा रही होती थी, तो तब आपका जहन फ्रेश होता है, खुला हुआ होता है, इफ़ यू आर स्पेशली ट्रैवलिंग ऑन बस, और अगर आपको बहुत दूर है यूनिवर्सिटी या जो भी है, तो तब मैं कोई इस्लामिक पॉडकास्ट लगा लेती थी। और जब वापसी में मैं बहुत टायर्ड हूँ, तो फिर मैं कोई और सुन रही हूँ, या जैसी मेरी पॉडकास्ट होती हैं, मैं वैसे ही किसी की पॉडकास्ट सुन लेती थी। लेकिन दैट्स अ गुड टाइम टू लिसन टू पॉडकास्ट, सुबह सुबह उठ के अगर आपने स्पिरिचुअल सुननी है। और जैसे अगर आप कोई बुक पढ़ रहे हो, तो आप एकदम से जंप नहीं कर सकते उस बुक पे, जो कि आपको कभी कभी कोई स्टोरी चाहिए होती है, कोई स्टोरी आपने पढ़नी होती है। तो आई थिंक स्टार्ट लुकिंग फॉर द बुक्स जिसमें किसी मुस्लिम की स्टोरी है, और दैट वुड बी हेल्पफुल। तो these are the two things that I can recommend। जैसे जैसे मुझे और पता लगता रहेगा, I'll start telling you guys more। लेकिन these were the things that
personally motivated me to know my religion more, to discover about it, to find it, to learn about it. Or I hope this episode help you guys. और I would end this episode right now. मुझे लगता है कि बहुत कम है, लेकिन I think I've been speaking for a while now. और तो I'll see you guys very soon next Wednesday. अच्छा, अब ना पता है क्या होता है, आई डोंट नो, मुझे ना संडे को आके ये लगना शुरू हो जाता है मे बी आई स्किप्ड द प्रीवियस वीक्स एपिसोड, क्योंकि इतना टाइम हो जाता है। और मुझे ना, जैसे अभी भी मैं रिकॉर्ड करी हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है पता नहीं मैं कितने अरसे बाद रिकॉर्ड कर रही हूँ, लेकिन आई डिडंट चेक और मैंने नहीं स्किप की होती। लेकिन आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर आखिरी अशरा, आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर ईद, और नॉट एक्साइटेड फॉर समर्स, क्योंकि मौसम आजकल बहुत अच्छा है। और मुझे तो मतलब कि आई कांट बिलीव, आई डोंट नो इफ यू आर मतलब कि whoever इज लिसनिंग टू इट, आपके वहाँ पे क्या मौसम है, लेकिन इन लाहौर और आई थिंक द एरियाज इन लाहौर एंड पंजाब, यहाँ पे इतना अच्छा मौसम है एंड इट्स अनबिलीवेबल फॉर अस, क्योंकि अप्रैल में कभी इतना अच्छा मौसम नहीं हुआ। तो अभी तक तो बहुत अच्छा मौसम है, नॉट वेरी एक्साइटेड फॉर समर्स, लेकिन रियली एक्साइटेड फॉर ईद। एंड देखते हैं उसके बाद क्या होता है, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। लेकिन और मेरे पास बहुत टॉपिक, मतलब कि आई हैव अ लॉट ऑफ टॉपिक्स और फॉर पॉडकास्ट दैट आई हैव टू कवर आफ्टर रमजान, और वो भी बहुत इंटरेस्टिंग और अच्छे टॉपिक्स हैं। मैंने ना पिछली जो एपिसोड थी उसके बाद मैंने कहा इट्स अ वेरी रमजान फ्रेंडली एपिसोड, फिर मैंने कहा मेरी कोई भी एपिसोड वैसे नॉन रमजान फ्रेंडली नहीं है, मतलब कि मैंने कभी भी ऐसी कोई चीज़ के बारे में बात तो नहीं की। तो एवरी एपिसोड इज, लेकिन उसमें ये होता है कि म्यूजिक होता है। और I really want to know your feedback, क्योंकि why I added the music was that के अच्छा we'll have this conversation बाद में, अभी नहीं, खैर। लेकिन I hope you all are having a great week. I hope you all are having a great weekend. वो अभी आने में वैसे टाइम है। और आई होप के जो भी यूनिवर्सिटीज जॉब पे जा रहे हैं, आई होप आप लोगों को जल्दी छुट्टियां मिलें, और स्पेशली स्कूल्स को। और जिनके बोर्ड हैं राइट आफ्टर ईद, या फिर ईद के कुछ अर्से बाद, क्योंकि वो टाइम आ रहा है, बोर्ड का सीजन आ रहा है, तो बेस्ट ऑफ लक। और हैव मतलब कि डू योर बेस्ट, लेकिन ज़्यादा स्ट्रेस ना करना। और उसके मैं एपिसोड बाद में बताऊंगी एजुकेशनल, दिस इज़ नॉट फॉर एजुकेशन, लेकिन आई होप यू ऑल आर हैविंग अ ग्रेट टाइम। The thing is that, bye, Allah Hafiz, have fun, and if you want to talk to me, so you know where you can find me. Bye.